Hello dear students, welcome to my channel. Today's topic is photosynthesis. This is part 1 and actually this is introductory part in which we will study site of photosynthesis, photosynthetic pigments, their location, nature of light, absorption spectrum and action spectrum. Without wasting time, let's start your lecture. Photosynthesis is the single most important physico-chemical process of the world on which the existence of life on earth depends. From man's point of view, the greatest role of photosynthesis in the production of world's foodstuff and oxygen. It is only the plants which utilize solar energy to form food by the process of photosynthesis. Oxygen release is needed by animals and plants, and for all the food we eat, the fuel we burn, the clothes we wear, directly or indirectly, we are totally dependent upon plants, and this all we get from green plants due to the process called photosynthesis. तो बच्चों आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है और जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के थ्रू ही होती है ये। और जो भी हम फूड जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर जो क्लोथ्स हम यूज़ करते हैं, जो फ्यूल जो हम जलाते हैं घर में, और साथ में पेट्रोलियम जो फ्यूल होती है वो भी आफ्टर फॉसिलाइजेशन बनती है, प्लांट से ही बनती है। तो ज़्यादातर सारी चीज़ें पौधों के ऊपर और इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। Now first definition. And photosynthesis is a physico-chemical process that convert carbon dioxide into organic compounds, carbohydrate, and by the utilization of solar energy, radiant energy, and convert this radiant energy into chemical energy with the release of the oxygen. सो आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो फोटोनिक एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और हाई एनर्जी बॉम्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं वो उसमें जाकर के स्टोर हो जाती है एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी के अंदर कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके अंदर होती है, बट आर्किया में ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो प्लांट्स which perform the function of photosynthesis and can perform they prepare their food themselves are called photoautotrophs, and they can prepare their food themselves. Now you can see the process of photosynthesis. So this is actually biochemical process in which the simple inorganic compounds like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll produce carbohydrate with the release of oxygen. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन इस पूरी प्रोसेस में रिलीज होती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप ये कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन oxidation reduction reaction in which photo oxidation of water is found, from where oxygen is released and the reduction of CO2 takes place in which the hexose or carbohydrate is produced. तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उसके अंदर, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, वो वाटर का होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ में CO2 रिड्यूस होती है और उससे हेक्सोस यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ईयर में बच्चों आप सब ने
स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल बायोलॉजी पढ़ी हुई है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं. तो क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन प्लास्टिड which act as photosynthetic apparatus. Each chloroplast outer membrane is double membranous structure enclosing gel-like proteinaceous material. That gel-like material is called stroma. And inside the stroma, so many lamellae, they are get arranged one above the other. These are called thylakoids. Thylakoids are folded and stalk to form compact structure called grain. Plast होता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. और ये एक्चुअली जो है आपका, ये बाहर की तरफ से देखिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप प्रेजेंट होता है इसके अंदर. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है. एक्सटर्नल मेम्ब्रेन आप इसको बोलते हो. और ये बाद वाली जो लेयर है वो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है. और दोनों के बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं. इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, वो फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली मैट्रिक्स होती है, स्ट्रोमा होता है. ये कोलॉइडल फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड होता है. और इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये बहुत सारी थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन होती हैं. और ये एक के ऊपर एक अरेंज, दे आर अरेंज वन अबव द अदर इन फॉर्म स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. दिस स्टॉक इज कॉल्ड ग्रेनम थैलाकोइड. तो जो थैलाकोइड्स होते हैं वो टू होते हैं, ग्रेनम थैलाकोइड और स्ट्रोमा थैलाकोइड. वो जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमा में फैले होते हैं, दे आर स्ट्रोमा थैलाकोइड. और जो कॉम्पैक्ट होते हैं, के ऊपर एक अरेंज होते हैं, उनको ग्रेनम थैलाकोइड बोलते हैं. थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो होती है, दिस येलो वन थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं. तो दीज आर लैमेली. एक्चुअली जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रॉपर होती है वो यही थैलाकोइड्स होते हैं. इसके अलावा लैंड प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जनरली इट इज लैंड शेप इन स्ट्रक्चर एंड द 3 to 10 मिलीमाइक्रोन इन डायमीटर एंड 1 to 3 मिलीमाइक्रोन विद द width actually. And greater diversity in chloroplast shape exists among in the algae and which often contain a single chloroplast. ज्यादातर एल्गी में जो डाइवर्सिटी क्लोरोप्लास्ट की होती है वो एल्गी में ही पाई जाती है और सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है कई एल्गी के अंदर. शेप के बेस पर हम एल्गी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बड़ा फैसिनेटिंग फीचर होता है और इसके बेस पर हम एल्गी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो उडोगोनियम की अगर हम बात करते हैं तो उडोगोनियम के अंदर नेट लाइक, जिसको हम रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, सिंगल क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट मैनर में होता है. क्लेमाइडोमोनास की बात करें अगर तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर काप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है. और अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करते हैं तो स्पाइरोगायरा के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड रिबन होता है. और कई सारे एल्गी ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो टू भी हो सकते हैं. समझ में आया? इन सम एल्गा 2 क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड. जिग्नीमा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जिग्नीमा एक एल्गा होता है, इसके अंदर स्टार शेप 2 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. और क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है और ये क्लोरोला के अंदर काफी बड़ा कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है और इवन वो पॉकेट की तरह वर्क करता है. सारे सेल ऑर्गेनेल उस कप के अंदर आ जाते हैं, इवन न्यूक्लियस भी उसके अंदर. तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक फैसिनेटिंग फीचर होता है और एल्गी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे पिगमेंट्स के बेस पर करते हैं वैसे क्लोरोप्लास्ट के बेस पर भी हम एल्गी को देखते हैं. इसके अलावा when we talk about the function of the chloroplast, one of the main function of the chloroplast is its role in photosynthesis, the process by which light is transformed into chemical energy to subsequently produce food in the form of sugar. मतलब water and carbon dioxide react with each other in the process photosynthesis and produce sugar, and with the release of oxygen using sunlight. And photosynthesis is divided into 2 stages, the light reaction and the dark reaction. In the light reaction, water is split, that is called photooxidation of water, and the 2 phases are linked by the energy carrier
ATP, adenosine triphosphate, and NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. एंड अगर हम स्ट्रोमा के अंदर बात करें इसकी, अभी अभी हम स्ट्रक्चर ही कर रहे थे, बीच में मैंने थोड़ा दूसरा प्रोसेस ले लिया आइडेंटिफिकेशन के बेस पर, या कितने नंबर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं किस एल्गी के अंदर, ये मैंने थोड़ा सा जनरल ले लिया था। इसके अलावा अगर स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा जो होता है, अभी मैं कैल्विन साइकिल आपको पढ़ाऊंगी, तो कैल्विन साइकिल के अंदर CO2 एक्सेप्टर है रिबिस्को, तो रिबिस्को CO2 को एक्सेप्ट करके फिक्स करने का काम करता है। तो और इसके अलावा CO2 fixes into glucose also, glucose or sucrose also, hexose की form है उसको। In C3 plants, rubisco is abundant in all chloroplasts, but in C4 plants, it is confined to the bundle sheath chloroplast where Calvin cycle is carried out in C4 plants actually. So in stroma, मैट्रिक्स जो कहते हैं उसको स्ट्रोमा भी कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन, एंजाइम्स, स्टार्च, पिगमेंट्स बहुत सारे जिनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं, डीएनए, प्लास्टोग्लोबुलिन एंड और साथ में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल से। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इज कॉल्ड फ्रेट मेम्ब्रेन एंड स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रेट चैनल। Now photosynthetic pigments. Pigments involved in the process of photosynthesis are known as photosynthetic pigment. तो photosynthesis में जो pigment part लेते हैं उनको photosynthetic pigments बोलते हैं। They are chlorophylls, carotenoids and phycobilins. जो most important pigments होते हैं वो chlorophyll, carotenoid और phycobilin pigments होते हैं। Now let's talk about the chlorophyll pigment. This is the structure of chlorophyll pigment. Chlorophyll A. In chlorophyll, chlorophylls are actually green pigments which trap solar radiation. 10 types of chlorophylls are found. प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल A, B, C, D, E 5 तरीके की क्लोरोफिल होती है, बट बैक्टीरिया के अंदर जो होती है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C, D, E और साथ में बैक्टीरियोविरिडिन, इतनी टाइप की बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। एंड क्लोरोफिल A कंसिस्ट ऑफ पोरिफेरिन हेड एंड phytol tail of long hydrocarbons, and porphyrin head consists of 4 pyrrole rings which are connected by magnesium atom. Let's talk about the structure of the chlorophyll A molecule. तो chlorophyll A जो molecule होता है वो किसका बना हुआ होता है? पोरिफेरिन हेड का। ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है ये पोरिफेरिन हेड है, और इसको क्या कहते हैं? टेट्रा, विच इज कंसिस्ट ऑफ टेट्रापायरोलिक हेड, टेट्रापायरोलिक रिंग्स एक्चुअली। और टेट्रा मतलब 4, पायरोलिक रिंग्स मतलब 1। आप देखो ध्यान से डायग्राम को, फर्स्ट रिंग ऑफ पायरोल, सेकेंड, थर्ड रिंग एंड दिस वन इज फोर्थ रिंग। तो इसलिए इसको कहते हैं हेड और टेल, 2 पार्ट का बना हुआ जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। और इस 2 पार्ट में हेड जो होता है वो टेट्रापायरोलिक हेड होता है जिसमें 4 रिंग्स होती हैं, और ये नीचे पूरी फाइटोल की यहाँ तक नीचे तक लंबी टेल है, तो वो फाइटोल टेल और टेट्रापायरोलिक हेड इसके अंदर होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो होता है C55H72O5N4Mg होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला जो होता है वो C55H70O6N4Mg होता है। क्यों होता है ये थोड़ा सा चेंज इसके अंदर? वो इसलिए होता है कि जब क्लोरोफिल ए का ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, क्लोरोफिल ए के फॉर्मूले में जो सेकेंड रिंग होती है, जो पायरोलिक रिंग सेकेंड रिंग होती है, इसके ऊपर आप देखो एक मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बी, इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड पायरोल रिंग there is aldehyde group, CHO group is attached over here, and all the 4 rings are connected by magnesium atom which is found in the center.
तो मैंने क्या बताया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है टेट्रापायरोलिक इसका हेड है, 4 पायरोल रिंग से जो चारों मैग्नीशियम एटम से कनेक्टेड है। क्लोरोफिल ए में सेकेंड रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में सेकेंड रिंग के ऊपर CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और दोनों में फाइटोल की टेल होती है। नेक्स्ट इज कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड जो होते हैं सेकंड पिगमेंट होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ ऑरेंज एंड येलो कलर पिगमेंट्स एंड दे आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट. No light is required for their biosynthesis. That is why plants growing in dark are yellow in color as they develop carotenoids. Carotenoids जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, keratins and xanthophylls. Keratins are orange in color whereas xanthophylls are येलो इन कलर. कैरोटीन भी होते हैं, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन. आपने गाजर देखी हो ना, कैरेट नाम ही उसका है और उसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है. आप घर में अब पतझड़ आता है, सीजन होता है, लीफ फॉल होता है, तो आपने देखो पतझड़ में पत्तियां पीली हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ xanthophyll pigment in it. Phycobilins. Phycobilins constitute a major group of photosynthetic pigments in blue, green algae and red algae. Actually, they are of two types, phycoerythrin and phycocyanin. फर्स्ट ईयर में आपने एल्गी पढ़ी है रोडोफाइसी में, कौन सी पढ़ी है, पॉलीसाइफोनिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी पढ़ी है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ी, नॉस्टॉक पढ़ी हुई है. तो ये क्या होते हैं, फाइकोरेथिन और फाइकोसाइनिन जो कलर होते हैं वो फोटो उनके अंदर क्या होती है, इनके थ्रू पिगमेंट्स होते हैं, इसमें ये वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर. नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. So location of photosynthetic pigments. Location of photosynthetic pigments, chlorophyll pigments are three type of chlorophyll pigments. आपने अभी पढ़े क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और xanthophylls. तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एक्चुअली अटैच्ड विद प्रोटीन कंटेंट्स और इनको कहते हैं क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. समझ में आया? और अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ी हुई है आपने, और यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है. जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंसिस्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाली मेम्ब्रेन्स होती हैं विच द lipid bilayer is present and the protein contains are scattered in it. तो क्या हुआ एक्चुअली, लिपिड बाइलेयर जो है वो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल, अगर सारी मेम्ब्रेन एक सी होती तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन भी उसी की बनी हुई होगी. तो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, विच आर अरेंज्ड वन अबव द अदर एंड फॉर्म स्टॉक, एंड दिस ग्रेनम थैलाकोइड आप जिसको बोल रहे हो, तो ग्रेनम थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, लिपिड बाइलेयर है. यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर. तो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स are found association with protein and form protein chlorophyll complex. So 4 complexes are found in 2 pigment protein complex. So recently it has been shown that chlorophyll molecules are associated with the protein contents, that is called chlorophyll protein complex, and they are embedded in the lipid bilayer. And lipid bilayer 4 complexes are embedded, 2 pigment protein complexes, and that are actually photosystem 1 complex and photosystem 2 complex. And the pigment molecules which are associated with PS1 complex, they are located towards the outer side, whereas those are associated with pigment complex, pigment system 2 complex, actually they are located on the inner side of the thylakoid membrane. Along with PS1 and PS2, 2 different type of complexes are also found. These are called cytochrome B6F complex and ATPase complex. This is the structure. This is actually lipid bilayer. You can see this is head, hydrophilic head, and from the hydrophilic head to hydrophobic tails, fatty acids, which are consist of fatty acids. They are hydrophobic tails.
तो आप देख रहे हो ये जो लिपिड, ये जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। जो लिपिड बाइलेयर होता है वो दो लेयर हैं, आप देखो, एक ये लेयर और ये लेयर दोनों सेम है। और इसमें जो एक लेयर जा रही है ये है किसकी, हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वाटर लविंग है। जो टेल है जो अंदर की तरफ है दोनों वो जो है तो वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर फेयरिंग होती है ये। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर चार कॉम्प्लेक्सेस आप देख सकते हो। PS2 कॉम्प्लेक्स सबसे नीचे है, उसके अंदर आप देखो सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें LHC सेकंड मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड और कोर कॉम्प्लेक्स सेकंड आपको दिख रहा है। सेकंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। थर्ड PS1 कॉम्प्लेक्स, उसमें आप देखो कोर कॉम्प्लेक्स 1 और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 इसके अंदर प्रेजेंट है। फोर्थ वन इज एटीपेज कॉम्प्लेक्स, और एटीपेज जो है वो एटीपी प्रोडक्शन का, एटीपी सिंथेसिस भी बोलते हैं, जिससे एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लाइट. Nature of light. Light is electromagnetic radiation and represent only one part of it. Other parts include cosmic rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared rays and रेडियो वेव्स. तो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है लाइट का, और जो हम देखते हैं वो विजिबल लाइट होती है और वो एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। उसके अलावा वहां पर कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स होती हैं। विजिबल लाइट, उसी के बीच में एक छोटा सा स्पेक्ट्रा, आपने ना छोटे हो गए जब आप लोग तो प्रिज्म के प्रैक्टिकल करते थे +2 में आप लोग, तो आपने देखा होगा उसमें एक रेनबो जैसे कलर्स दिखते हैं, 7 कलर्स, उसके बारे में आपको टीचर बताते होंगे। ये विबग्योर है जो आपका कलर्स, जो उसके अंदर 7 कलर्स थे। विबग्योर का मतलब भी आपको पता होगा, विबग्योर का मतलब होता है 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। विब वॉयलेट, इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये विबग्योर कहाँ है एक्चुअली, वो विजिबल लाइट है, और वो विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट वेव्स के बीच में और इंफ्रारेड वेव्स के बीच में जो रेडिएशन टोटल हो रहा है वो बहुत सारा हो रहा है। आप देखो यहाँ से शुरू हो गया है, और गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, इतनी सारी वेव्स हैं। लेकिन जो हम देख सकते हैं विजिबल लाइट जो है, जो हमें स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, रेनबो के फॉर्म में दिखती है, वो कौन सी विजिबल लाइट है, वो 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच में होती है। आप वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, आप इनकी वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक बीच में है। वॉयलेट की यहाँ से शुरू है, ब्लू जो आ जाती है वो धीरे धीरे 470 के आसपास, 460 के आसपास ब्लू आ जाती है, 430 के बाद ब्लू शुरू हो जाती है। उसके बाद ग्रीन 470 के आसपास आती है, और ऑरेंज जो 59 के आसपास आती है, रेड जो है वो 620 नैनोमीटर के आसपास रेड शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये विजिबल लाइट होती है, और विजिबल स्पेक्ट्रम हमेशा, विजिबल लाइट हमेशा किस किस के बीच में है, अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में और इंफ्रारेड रेज के बीच में विजिबल लाइट होती है, जो कि विजिबल लाइट को ही प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. When photon of light energy fall on chlorophyll molecule, one of the electron pair from the ground state or singlet state passes into the high energy level called excited singlet state. From excited singlet state, electron pair come back to the singlet state with the release of energy, and this process is called, in which the energy is released in the form of radiation, that is called fluorescence. And एक और प्रोसेस होती है, and the one when the sometimes the electron at excited singlet state it gets in its spin reverse, because two electrons at the same energy level cannot stay. As a result, it stay at
low energy level called triplet stage. From excited singlet state and come back to ground state with the release of energy in the form of radiation. This type of energy transfer is called phosphorescence. So this is called phosphorescence. I can show you with the help of diagram. अब आप देखो ट्रांसफर एनर्जी कैसे हो रहा है. क्लोरोफिल एक ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है. क्लोरोफिल जो होते हैं वो आपने जैसे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, सबका अपना एक ऑर्बिट होता है. वैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का भी अपना ऑर्बिट है. जब उसके ऊपर ये लाइट का सोर्स क्या है, सन है. ठीक है. लाइट एनर्जी, जब व्हेन द लाइट एनर्जी फॉल ऑन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जब आप देखो इसके ऊपर जब लाइट एनर्जी फॉल हुई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है. सबसे पहले वो कैसे होते हैं, नॉन एक्साइटेड स्टेज को कहते हैं ग्राउंड स्टेट. इसी को सिंगलेट स्टेट भी बोलते हैं. तो ग्राउंड स्टेट पे ये पहले होते हैं और ग्राउंड स्टेट पर ये जो होते हैं उसके बाद जैसे एनर्जी फॉल होती है, लाइट एनर्जी, दे गेट एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड हो करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे. उसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट. अब ये फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पर जा करके अब ये इसके बाद ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो जब वो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पर जाएं और अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ते हुए वापस आते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरेसेंस. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस. सॉरी. एंड समटाइम कभी कभी कुछ डिफरेंट होता है. उसमें क्या होता है, एनर्जी, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पर जा करके दो पेयर जो हैं एक ही जगह पर ज्यादा देर स्टे नहीं कर पाते, तो कम एनर्जी लेवल पर, कंपैरेटिवली लो एनर्जी लेवल पे ये वापस आकर के स्टे करके फौरन वापस आ जाते हैं अपनी स्टेट पे. इस स्टेट पे जहां पर ये कम एनर्जी लेवल पे स्टे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट स्टेट. और उसके बाद ये विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी in the form of radiation they come back to ground state. उसको कहते हैं phosphorescence. तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं. फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और कभी कभी ये सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पर चले जाते हैं और वापस आते हैं विद द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस, एंड दिस इज यूजलेस प्रोसेस. तो इसको इसमें सिर्फ हीट लॉस होता है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होता है प्लांट्स के अंदर. Next is absorption spectrum and action spectrum. Absorption spectrum, curve representing the absorption of light at different wavelength by photosynthetic pigment, is called absorption spectrum. Absorption spectrum, chlorophyll A and B show that these pigments chiefly absorb blue and red region of spectrum. अब क्या है कि एक ग्राफ आप लोग ने भी बनाए होंगे. ग्राफ कैसे बनाते हैं कि एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं. इसमें क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि एक्स एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन है और वाई के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है. डिफरेंट वेवलेंथ अभी मैंने आपको पढ़ाई विबग्योर में कहाँ से शुरू हुई, 390 एंगस्ट्रॉम से या 390 नैनोमीटर से ये शुरू हुई है और जाकर के 780 तक जाकर के रेड रीजन में जाकर के वो इतनी तक विजिबल लाइट होती है. तो इसमें अगर हम एक प्लॉट बनाते, एक ग्राफ प्लॉट करा साइंटिस्ट ने, उसमें कर्व रिप्रेजेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. इसमें जो इन्होंने देखा कि एक साइड में एब्जॉर्प्शन लिया और दूसरे साइड में डिफरेंट वेवलेंथ ली और जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल, कैरोटीन, फाइकोबिलेंस, तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों में उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया एब्जॉर्प्शन और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उसमें देखा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों की दोनों जो ब्लू वाला रीजन की लाइट होती, ब्लू वाले रीजन में पीक शो करती है ग्राफ में, और फिर आगे जाके ये डाउन हो जाता है, फिर आगे जाके फिर रेड रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. इसका मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ब्लू वेवलेंथ की लाइट पे और कौन सी वेवलेंथ,
रेड वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करती है. दिस इज कॉल्ड, मतलब ए और बी का जो ग्राफ होता है मोस्टली पैरेलल होता है, रेड और ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करती है. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Next is action spectrum. Action spectrum in which the graph is plotted between the rate of the photosynthesis at a different wavelength of light, and it is measured by the amount of action like carbon dioxide fixation, oxygen production and NADP reduction, etc. It is called action spectrum. And it has been observed that the photosynthesis occur maximum in blue and red part of the visible spectrum of light. And this is and this side this is actually rate of photosynthesis and at the lower side different wavelength of light. And the straight light is absorption spectrum and this dotted is action spectrum. तो ये comparative study का ग्राफ है. तो action spectrum actually क्या होता है कि action spectrum के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखी जाती है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के ऊपर. अब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के ऊपर आप कैसे देख सकते हैं कि ग्राफ जो प्लॉट किया तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली उन्होंने ऐसे देखी कि उसमें एक्शन क्या हुआ. एक्शन का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ और कितनी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ और एनएडीपी कितनी रिड्यूस हुई. ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के एक्शन स्पेक्ट्रम और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पर ये देखा और इसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. और ये इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फोटोसिंथेसिस अकर मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. और दोनों एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. आप देखो दोनों में ही 460 के आसपास जो ब्लू रीजन है वहां पर पीक्स शो हो रहे हैं, उसके बाद डाउन हो गए. बाकी के रीजन में जब रेड आना शुरू हुआ रीजन तो फिर से इसके अंदर पीक्स आने शुरू हो गए. तो इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा होती है. तो क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करती हैं? ब्लू और रेड. Okay, so this is the end of my lecture. Thank you so much for watching me. और आप